In our last lecture, we studied a lot about the pattern of inheritance, and we also studied about the Mendel's work. Mendel ने बहुत सारे laws बनाए जिसको हमने study किया, and he is father of genetics as we know today. क्यों उसको फादर ऑफ जेनेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी ने ही बिकॉज मेंडल्स फॉर्मुलेटेड वेरियस लॉज, जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थे उसका जो बेसिस बनाया था दैट वाज डन बाय मेंडल, और बहुत सारे लॉज बनाए. इवन ड्यूरिंग द मेंडल टाइम ही वाज नॉट इवन नोइंग दी व्हाट जीन्स और वट एवर ही वॉज टेलिंग अबाउट दी फैक्टर्स को जो उसने डिस्क्राइब किया, लेकिन उसकी केमिकल नेचर वो जान नहीं सका. लेकिन आज की डेट में बहुत सारे साइंटिस्ट एंड लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट दे हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन इन्वेंशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. कि जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट दे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी. कोलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैकार्थी एंड ओसवाल्ड अवेरी वर थ्री साइंटिस्ट. दे गेव द बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन of these genetic work, that is DNA are responsible for the transmission of characters. तो सबसे पहले उन्होंने बोला and then later on उस पर स्टैम्प किसने लगाई? हर्शे एंड चेज ने, कि DNA is actual our genetic material. और आज की डेट में तो हमें पता चल ही गया है कि मेन जीन्स जो हैं they are a part of DNA. ठीक है, तो दिस चैप्टर we will be studying about various topics that are moving around the DNA. As we know, DNA is our bank of genetic information. That means it controls various or all the hereditary transmitting characters. जो भी characters हमारे parents से offsprings में जाते हैं, और what are various kind of resemblances, or in what manner we are deviating, or all these species they are deviating from each other. This is because of DNA. As we know that DNA is maintaining the identity of a species. कोई भी species की identity है that is due to the DNA, and each species has its constant number of DNA. constant number होता है DNA का, and wherever we go that species will contain that constant number. कभी बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं. जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं ह्यूमन बींग्स में, we are having 46 chromosomes or 23 pairs of chromosomes, and all these 23 pairs of chromosomes are maintaining our identity. हम किसी भी वर्ड के कहीं पे भी चले जाएं एरिया में, the people all they will be representing, और Homo sapiens will be having 46 number of क्रोमोसोम्स. और इसका क्या मीनिंग है कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं सबके अपने अपने क्रोमोसोम्स नंबर फिक्स है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? दैट इज़ DNA, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है. और इवन DNA इज़ ब्रेन ऑफ आवर सेल. वाई इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ आवर सेल? बिकॉज इट इज़ कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी फंक्शन. जैसे कि जितने भी फंक्शंस हैं सेल्स के, वट एवर फंक्शंस वी आर एग्जिबिटिंग, जो भी हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कर रहे हैं हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, बिहेवियर एस्पेक्ट्स हैं, emotional aspects हैं, whatever we are doing, all they are due to the DNA. तो on the whole what we can say कि DNA is a chemical basis of heredity, and genes are a part of DNA, and they are responsible for the transmission of characters or regulation of various characters. और genes क्या हैं? एक्चुअल में chemical segments of DNA हैं, और what we can say, genes are responsible for the formation of various characters, or they are responsible for the formation of various proteins. So on the whole, in a single line we can say that DNA is central dogma. In what manner? DNA is forming the RNA. क्या बना रहा है? RNA. And RNA is again going to form the proteins. क्या बनाएगा? Proteins बनाएगा. और what are various mechanisms that are moving around, और various topics that are moving around this DNA. DNA अपनी ही replication करके खुद को भी डबल करता है. तो this all is called the central dogma, कि each and every topic or every mechanism of living beings that moves around the DNA के चारों तरफ ही घूमता है. So I mean to say we are going to start with DNA का structure and various basic components DNA से start करते हुए, then we will be moving about the processes. We will be moving towards the processes that are done with the help of, or that are regulated by means of DNA. इस chapter में हमने बहुत सारे
टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या है, और इवन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू दी डीएनए की स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हमें पता चल चुकी है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ पॉसिबल टू नो अबाउट होल जीनोम ऑफ दी ह्यूमन जीनोम। तो उसके बारे में रिसर्चेस आर गोइंग ऑन और हो चुकी हैं, और हम जान सकते हैं अपने ही जीन्स के बारे में। और मोर ओवर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है, जो कि एक हम कह सकते हैं इट इज़ ए बेस ऑफ ए फॉरेंसिक साइंसेस। फॉरेंसिक साइंसेस का एक बेस जो बनाती हैं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद डीएनए। जैसे कि हमें मालूम है डीएनए क्या है, आवर जेनेटिक मटीरियल, एंड व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म, ऑल ऑफ अस नो ऑलरेडी, इतना तो हमें मालूम ही है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, उसके लिए भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो भी हम देखते हैं कि किसने न्यूक्लिक एसिड बोला, किसने इसको न्यूक्लियस में से डिस्कवर किया, एंड हु नेम द टर्म डीएनए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड सेकेंड आरएनए इज ऑल्सो अवर जेनेटिक मटीरियल। तो आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है। एंड जैसे कि डीएनए, इफ़ यू टॉक अबाउट डीएनए इज़ ए किंग, तो आरएनए क्या है, क्वीन है या मिनिस्टर हम कह लें, किंग, एंड आरएनए इज़ ए मिनिस्टर। तो व्हाट डज इट मीन, डीएनए इंस्ट्रक्ट करता है आरएनए के को टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क और टू फॉर्म वेरियस प्रोटीन्स की फॉर्म में ही वर्क एग्जिबिट होंगे। चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे हमारी सेल डिवाइड कर रही है, चाहे हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, जो भी वर्क हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑल दे आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की फॉर्मेशन में ही वो एक्सप्रेस होते हैं। और ये सब काम करने वाला कौन है, डीएनए है। और डीएनए को ऑर्डर कौन करता है, आरएनए। तो ये दो तो है इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल। इवन आरएनए इज मेन जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस आल्सो। अभी हम देखेंगे आगे किसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल और किसमें डीएनए मेन है। तो आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड इज आल्सो जेनेटिक मटेरियल, एंड आल्सो इट इज हैविंग वेरियस कैटालिटिक रोल्स। कैटालिटिक एंजाइम की तरह भी काम करता है कुछ बैक्टीरियाज में, वो भी हम देखेंगे। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, कैसे कैसे आरएनए की मॉडिफिकेशन होती है इन डिफरेंट टाइप्स, सो दैट होल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैन बी अकम्प्लिश्ड। क्लियर। तो उससे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं डीएनए से। तो डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देयर वाज ए स्विस रिसर्चर फ्रीडरिक मिस्चर हुज नेम वाज जॉन। स्टार्टिंग में अगर नाम देना तो जॉन फ्रीडरिक मिस्चर was the name of scientist. He was a Swiss researcher. He is first studied, he saw it discovered from the nucleus of a pus cell. कहाँ से देखा उसने, न्यूक्लियस, जो कि पस सेल्स एक तरह की डिग्रेडिंग सेल्स हैं। पस सेल्स आर डैमेजिंग सेल्स होती है ना बॉडी की, उसकी न्यूक्लियस में से फ्रीडरिक मिस्चर ने डिस्कवर किया। ठीक है। उसके बाद देयर वाज ए साइंटिस्ट हुज नेम वाज अल्टमैन वाज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट who called it, coined the term nucleic acid. उसने इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर किसके कारण है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, जो कि अब अभी हम देखेंगे कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो इसको एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। तो दिस न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय अल्टमैन, एंड देयर वाज ए थर्ड नेम, जैक्रियास was the name of a scientist. ठीक है। फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 में, और इसी के आसपास ही ये सब साइंटिस्ट मूव कर रहे हैं, और जैक्रियास ने इसको नाम दिया, ही कॉल्ड द टर्म डीएनए बोला। ठीक है। कॉइन द टर्म डीएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो दीज वर 3 साइंटिस्ट हु पुट दे वर्क टुगेदर इन डिस्कवरी ऑफ डीएनए। इससे पहले तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, दे वर डिस्कवरिंग कि किस तरह से, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम बताए थे कि वो कैसे एक्सपेरिमेंटली रिसर्च वर्क कर रहे थे, और ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन डीएनए को कॉइन किसने किया, फ्रीडरिक मिस्चर ने इसको न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स में से डिस्कवर किया, एंड उसका नाम उसने क्या रखा, न्यूक्लिन।
he named it nuclein because it was present in the nucleus. And later Altman ने nucleic acid बोला and it was acidic in nature. That is why it was nucleic acid. And Zacharias coined the term DNA. उसने फुल नेम दे दिया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. अब हम देखते हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो इज रिलेटेड टू ए शुगर वर्ड. सो वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए डीएनए. डीएनए के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं और डीएनए एक्चुअल में क्या है. जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें इट इज़ लुकिंग लाइक ए हेलिकल स्ट्रक्चर. एक जैसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, एंड दे आर कॉइल्ड ओवर ईच अदर, स्पाइरली कॉइल्ड ओवर ईच अदर. 2 स्ट्रैंड्स है, एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड है. तो ये भी एक हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से प्रूव किया था. वो तो हम देखेंगे बाद में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल. लेकिन अभी आपको जस्ट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाने के लिए कि ये डीएनए बाहर से दिखता कैसे है. इट इज़ ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. जहाँ पे भी हम कभी डायग्राम देखते हैं ना, तो इस तरह से हमें नजर आता है डीएनए का स्ट्रक्चर. और इट इज मूविंग अराउंड ए कॉमन एक्सिस. एक एक्सिस है, उसके चारों तरफ ऐसे लिपटा हुआ स्पाइरली कॉइल्ड. एक एजम्पशन ले ली हमने एक्सिस की, जैसे एक एक्सिस है उसके चारों तरफ मान लो कोई रिबन लाइक स्ट्रक्चर मूव कर रहे हैं. 2 रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपस में कैसे हैं, कॉइल्ड है इन द स्पाइरल अरेंज मैनर. ठीक है, सम आर राइट हैंडेड कॉइल्स एंड सम आर लेफ्ट हैंडेड. कुछ राइट साइड पे टिल्टेड हुए हैं कुछ डीएनए, जैसे कि बहुत सारे डीएनए हम देखेंगे. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए जो हम बाद में देखेंगे कि व्हाट आर राइट हैंडेड एंड व्हाट आर लेफ्ट हैंडेड. अभी तो कॉमन देखते हैं कि ये स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर डीएनए जो है रिबन लाइक हेलिकल एंड 2 स्ट्रैंड्स है. देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. 2 स्ट्रैंड्स है, ठीक है. एंड दे आर दीज 2 स्ट्रैंड्स किस चीज़ के बने हुए हैं वो अभी हम देखते हैं कि इनके जो बेसिक कंपोनेंट्स है ना, व्हाट दीज आर देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स. वन इज शुगर. बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए अगर हम देखें ना, बेसिक कंपोनेंट्स डीएनए के बेसिक कंपोनेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ शुगर जो मेन मॉलिक्यूल है. शुगर मॉलिक्यूल विच इज़ ए मोनोसैकेराइड यूनिट हैविंग पेंटोस कार्बन शुगर. ये क्या चीज़ है ये अभी हम देखते हैं. पेंटोस कार्बन मीन्स 5 कार्बन शुगर. ठीक है. और सेकेंड हम देखेंगे इसमें और फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप इज देयर. फॉस्फोरस है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में. ये भी हम देखते हैं कि इस तरह से ज्वाइन है. एंड थर्ड वन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए डीएनए विच वी कैन कॉल नाइट्रोजनस कंपाउंड. Why we called it is an important part because these are representing the genes. कि एक्चुअल में यही केमिकल कंपाउंड्स हैं जो जीन्स हैं और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेवल होते हैं. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया ये डीएनए क्या है, किस चीज़ का बेसिक कंपोनेंट्स क्या है. ये 3 है. ठीक है, अब इनकी आपस में कैसे ज्वाइनिंग है. ऑल ऑफ दीज 3 आर कंपोनेंट्स. और जब ये ज्वाइन करते हैं ना तीनों कंपोनेंट्स, दे फॉर्म ए मोनोमेरिक यूनिट. उस मोनोमर को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर मीन्स सिंगल यूनिट बनाते हैं. मोनोमेरिक यूनिट या मोनोमर हम कह लें, दैट इज कॉल्ड दी न्यूक्लियोटाइड. उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड. और व्हाट इज ए न्यूक्लियोटाइड, एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप हो, एक पेंटोस शुगर हो, ठीक है, और एक नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड हो, नाइट्रोजनस कंपाउंड हो. तो इससे क्या होगा, एक यूनिट बन जाएगी. उस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. और वो एक यूनिट है. तो इस तरह से बहुत सारी मैनी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड बनेंगी तो ज्वाइन करेंगी आपस में. वो ज्वाइनिंग कैसे होगी, क्या बॉन्डिंग होगी, वो तो हम देखते हैं बाद में. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कंपोनेंट्स एंड देन ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स से मिलकर एक यूनिट बनी. जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट दिस इज ए सिंगल यूनिट. अब इस तरह की बहुत सारी यूनिट्स जब ज्वाइन करती हैं, आपस में ज्वाइन करेंगी एंड दे फॉर्म ए लॉन्ग चेन. और वो क्या बना रही हैं, लॉन्ग चेन बना रही हैं. दिस लॉन्ग चेन इज कॉल्ड दी व्हाट वी कॉल देम पॉलीन्यूक्लियोटाइड. Polynucleotide. Poly means many, mono means single,
पोली मीन्स मैनी। तो ये तो मैंने 3-4 बनाई है ना। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स में नंबर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द डीएनए। डीएनए इज ए नथिंग बट क्रोमोसोम। हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्या है, 1 क्रोमोसोम इज 1 डीएनए, 1 क्रोमेटिड इज 1 डीएनए। ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन क्रोमेटिड का जो इंट्रैक्शन है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो तो हम बाद में देखेंगे ही देखेंगे, उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्रोमोसोम भी डीएनए है, क्रोमेटिड भी डीएनए और क्रोमेटिन भी डीएनए है। ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हमने देखना है कि ये जो डीएनए है एक्चुअल में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट है। जैसे एक हम देख लें वॉल के अंदर एक ब्रिक, तो एक सिंगल ब्रिक होगी ना मोनोमर, एक न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारी इस तरह से जब ब्रिक्स ज्वाइन हो गई हैं एंड दे आर फॉर्मिंग ए लॉन्ग वॉल बना रही हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारी यूनिट मिलकर एक कंप्लीट वॉल का स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो इसी तरह से मोनोमेरिक यूनिट्स भी ज्वाइन करके क्या बना रही हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रही है। वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, दिस इज नथिंग बट डीएनए की एक स्ट्रैंड। तो इस तरह से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, दे आर स्पाइरली 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स स्पाइरली कॉइल होती हैं आपस में, और न्यूक्लियोटाइड चेन्स स्पाइरली कॉइल्ड एंड दे आर आल्सो हेल्ड टुगेदर, आपस में ज्वाइन भी होती हैं विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनको स्टेबिलिटी मिलती है। जब आपस में कॉइल होंगी, आपस में ज्वाइन होंगी, तो उनके लिए कुछ बॉन्डिंग होगी ना, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये तो होगी रिपीटेड यूनिट ऑफ व्हाट वी कैन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हम हर यूनिट को डिटेल से पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ए शुगर यूनिट, व्हाट इज़ ए फॉस्फोरस ग्रुप क्या होता है इसमें, और इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होते हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द शुगर। शुगर जो है एक्चुअल में इट इज़ ए टाइप ऑफ ए मोनोसेक्राइड और ए पार्ट ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल यूनिट है, जैसे कि हमें मालूम है कार्बोहाइड्रेट इज़ ए लार्ज बायोमोलिक्यूल, इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट में वी विल बी स्टडिंग स्टार्च, सेलुलोज एंड शुगर। शुगर जो है दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शुगर ट्राइओसिस की फॉर्म में, टेट्रोसिस की, पेंटोसिस की, और 6 फॉर्म कार्बन हेक्सोसिस की फॉर्म में स्टडी करेंगे। अब जो हम शुगर स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज़ ए मोनोसेक्राइड एंड कंटेनिंग 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर के बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, जैसे कि रिबोज, तो अभी हम देखते ही हैं रिबुलोज, जाइलोज, जाइलुलोज, अरेबिनोज, ऑल दीज आर 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर मीन्स दे आर हैविंग 5 कार्बन इन देम, और जब 5 कार्बन है तो अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला के अकॉर्डिंग C5H10 एंड O5, तो दिस इज़ द नंबर जनरल फार्मूला ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सिंपल यूनिट शुगर है। शुगर में 5 कार्बन शुगर जब होगी तो C5H10O5, और इस शुगर को हम नाम दे सकते हैं रिबोस शुगर। इट इज़ ए रिबोस शुगर या डीऑक्सी रिबोस शुगर। डीऑक्सी रिबोस मीन्स जिसमें एक ऑक्सीजन कम होती है। डीऑक्सी रिबोस शुगर इज़ ए पार्ट ऑफ डीएनए। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो उसमें वी विल बी गेटिंग द फार्मूला C5H10 एंड O4। ये किस तरह से होगा वो अब हम देखते हैं। तो अब ये जो शुगर है ना, इसको हम, ये ज़्यादातर क्या फॉर्म में होती है, स्ट्रेट चेन फॉर्म में भी होती है और रिंग फॉर्म में भी होती है। डिटेल आस्पेक्ट तो हम बायोमोलिक्यूल्स 11th में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ जनरल वे में। जैसे कि मान लो ये 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन है हमारे पास, एंड दे आर हैविंग एल्डिहाइडेड ग्रुप एट द टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन पे कौन सा है, एल्डिहाइड, एंड रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइक दिस। इस तरह से ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे कि कार्बन की वैलेंसी चारों तरफ से जस्टिफाइड हो रही है। इस तरह से ये अरेंज है, एंड दिस इज़ ए स्ट्रेट चेन और ए साइक्लिक फॉर्म। स्ट्रेट चेन फॉर्म है, ठीक है, और इसमें वी सी नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली दे आर गिविंग C5H10। 5 तो कार्बन हो गए, H कितने हो गए, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा स्ट्रेट चेन कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिबोस को। अब हम ना इसकी बॉन्डिंग दिखाते हैं, क्योंकि ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये जो शुगर जो है इट इज़ एग्जिस्टिंग इन द रिंग फॉर्म, और ये 5 कार्बन वाली रिंग जो होती है ना, उसको हम फ्यूरेनोस फॉर्म ऑफ रिंग बोलते हैं। फ्यूरेनोस फॉर्म में
व्हाट वी आर गेटिंग 5 आर्म्स होती हैं। वो 5 आर्म्स किस तरह से अरेंज्ड है वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि अगर हमने ये, पहले तो मैं इनकी ज्वाइनिंग आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये ज्वाइन है। मान लो इसको फर्स्ट कार्बन को हमने इसकी 4 कार्बन के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हेक्सोस में तो 5 के साथ करते हैं ना, इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। आई मीन टू से कैसे ज्वाइनिंग करनी है, ये कैसे ज्वाइनिंग होगी, जैसे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसका जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट करनी है। मतलब आई मीन टू से जब ये लॉस करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और 4 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन रह जाएगा, ऑक्सीजन ज्वाइन हो जाएगा ना यहाँ से और यहाँ के बीच में, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये यहाँ अरेंज कर लेंगे अपने आप को। तो एक बार इसको हम कर लेते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ का H ग्रुप। मान लो अगर हमने इसको रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया, तो माइनस वाटर मॉलिक्यूल करके व्हाट वी आर गेटिंग अगेन कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट कार्बन पे तो हमने अभी वैलेंसी नहीं देखते, इसके फर्स्ट कार्बन के साथ हमने देखा ऑक्सीजन, ऐसे जो बच गया था ये वाला ऑक्सीजन, इसकी ज्वाइनिंग होगी, रिंग फॉर्मेशन। क्योंकि जब भी ये ज्वाइन करेंगे ना इस तरह से ऐसे, तो जब रिंग बनाएंगे, और ये जो H और OH आयन निकले थे ना, दे विल अरेंज देमसेल्फ लाइक दिस। अब सारी वैलेंसी इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली कार्बन की जस्टिफाई होने जा रही है। तो जैसे इसमें ये तो हो गया, इसमें H विल बी देयर, विल बी रिमेनिंग, क्योंकि यहाँ से निकल गया, ठीक है, OH, और यहाँ से तो OH और H कैसे अरेंज हो जाएंगे ये अभी हम देखते हैं। H एंड इधर भी H एंड OH, ठीक है, इधर भी H एंड इधर OH, फिर इधर भी H, O तो उसके साथ ज्वाइन हो गया इसका OH के साथ, और यहाँ पे H अगेन H एंड देन OH, 5 कार्बन वाला वॉट एवर वी आर गेटिंग। तो ये हमने देखा, और इधर की हमने देखनी है कि किस तरह से कॉम्बिनेशन हमने कर लिया सब ज्वाइन। H यहाँ से इसका H OH H OH और ये, ठीक है, और इधर OH हम लगा देते हैं, ठीक है। ये वैलेंसी सबकी इसकी जस्टिफाई हो गई, क्लियर। तो दिस इज़ 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन एंड 4 कार्बन एंड ये 5 कार्बन, क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया ना वाटर मॉलिक्यूल कैसे अरेंज हो गए, OH और H यहाँ पे, और इन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया ये जो कॉमन O था फर्स्ट और 4 के बीच में। अब इसकी हम रिंग फॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरह से ये रिबोस शुगर बना रहे हैं। दिस इज ए पेंटागन दैट वी हैव फॉर्म, फ्यूरेनोस फॉर्म होती है, फ्यूरेनोस फॉर्म। इसको जब अरेंज करते हैं तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज 4 कार्बन, और इसकी एक्सटेंशन में C5 कार्बन, ये वाली C4 के साथ ही एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाएगा ना ये, तो ये C5, यानी कि इनको हमने ऐसे क्लोज किया। तो फर्स्ट कार्बन पर ये जो ग्रुप आएंगे दैट वी राइट ऑन दिस साइड OH एंड H, इस तरह से लेफ्ट वाली जो है ऊपर की तरफ, राइट वाले नीचे बिलो दी प्लेन हम करते जाएंगे। अगेन H एंड OH, again H and OH, again C5 कार्बन पे क्या है, CH2OH है ना, CH2OH, CH2OH, और इसी की ये काम पे CH that we are getting H। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक रिंग फॉर्मेशन रिबोस शुगर की बन गई। तो दिस इज ए रिंग फॉर्म ऑफ राइबोस शुगर, रिंग फॉर्म ऑफ राइबोस शुगर। और RNA में तो हमने ये राइबोस शुगर एज सच ही लिखना है, ठीक है। अगर हमें ये अच्छे से पूरा समझ में आ गया स्ट्रक्चर 5 कार्बन का कि किस तरह से ये रिंग फॉर्म बनानी है, अब एक्चुअल में तो DNA में आपको समझ आना चाहिए। वैसे तो ये पार्ट हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का है, उसमें भी हम और डिटेल में इसकी करेंगे, लेकिन अभी आपको एक DNA का स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिबोस का स्ट्रक्चर तो अच्छे से आना चाहिए ना, सब पार्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और जैसे कि ये रिबोस शुगर है, अगर हम डीऑक्सी रिबोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डीऑक्सी रिबोस शुगर में व्हाट वी आर गेटिंग, सेकेंड कार्बन पर ये जो OH ग्रुप है ना, वहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल देंगे।
तो दोनों तरफ एच हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। नाउ दिस टाइम दिस शुगर इज डीऑक्सी राइबोस नॉट राइबोस। ओ लगा देंगे तो राइबोस, डीऑक्सी रिबोस जब ओ हटा देंगे, ठीक है। बस ओनली दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, क्लियर। जब भी हमने राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर या डीऑक्सी राइबोस शुगर का बनाना है तो देयर इज ए स्ट्रक्चरल डिफरेंस। क्या है, सेकंड कार्बन पोजीशन पे राइबोस की जो रिंग फॉर्मेशन है ना, उसमें सेकंड कार्बन पोजीशन पे वन ऑक्सीजन इज लेस, देन इट बिकम्स दी डीऑक्सी राइबोस शुगर और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5H10NO4, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा शुगर कंपोनेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है ना, H3PO4 फास्फोरिक एसिड की फॉर्म में होता है। फास्फोरिक एसिड तो हम केमिस्ट्री पढ़ते ही हैं, हमें बहुत कॉमन इसका स्ट्रक्चर मालूम ही है। फास्फोरिक एसिड कैसे होता है कि जैसे बीच में एक फास्फोरस ग्रुप है तो चारों तरफ क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। एंड ऑन वन साइड इज वी आर हैविंग P डबल बॉन्ड O। ये तो हमारा फास्फोरिक एसिड का फार्मूला बन गया H3PO4। और एक्वस सॉल्यूशन में जब भी होता है ना तो डीएनए में ये एक H लेस हो जाता है, तो फिर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और आयनिक फॉर्म में इसकी ज्वाइनिंग किसी के साथ भी O में, O के साथ किसी भी कंपोनेंट की होगी, जिसकी भी होगी डीएनए के स्ट्रक्चर में वो भी देखते हैं। तो ये किस फॉर्म में, O माइनस, तो ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो दिस इज ए सेकंड स्ट्रक्चर फास्फोरिक एसिड। ये तो टू मेन कंपोनेंट्स हो गए, कौन से, शुगर। और शुगर एंड फास्फोरस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बैकबोन बना रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द डीएनए, यानी कि टू बैकबोन्स जो डीएनए की हैं, जो दो स्टैंड्स हैं वो किसके बने हुए हैं, शुगर एंड फॉस्फेट के। जैसे वन स्टैंड अगर हम लें, दिस इज़ वन शुगर एंड दिस इज, इसके बीच में फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर शुगर एंड फिर फॉस्फेट ग्रुप। ये तो जहाँ जहाँ पे ये बॉन्डिंग नज़र आ रही है ना, वहाँ शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मान लो शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। और इसके तरफ दूसरा स्टैंड है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है, फिर शुगर है एंड देन फिर फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये तो बैकबोन हो गई। ये बैकबोन किसकी बनी, शुगर एंड फॉस्फेट की। और इसी के साथ शुगर के अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेसिस क्या है, ये अब हम देखते हैं। शुगर के साथ ही ये अटैच्ड हो रहे हैं और इनके बीच में क्या है, डबल या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। Now we come to the next component. What are these three nitrogen bases? Now we come to the third and most important part, और बहुत ज़्यादा वेरिएबल पार्ट, नाइट्रोजनस कंपाउंड। वाई इट इज़ वेरिएबल, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है ना, रिंग स्ट्रक्चर, इट इज़ हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का क्या मीनिंग है, हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में अरेंज है, हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन रिंग, दे आर हैविंग टू मेन कंपोनेंट्स, टू मेन ग्रुप्स। सबसे पहले तो नाइट्रोजन कंपाउंड के टू मेन ग्रुप्स कौन से, वन इज प्यूरीन एंड सेकंड वन इज पायरेमिडीन। वन इज प्यूरीन एंड सेकंड वन इज पायरेमिडीन, ठीक है। अब ये हीट्रोसाइक्लिक जो है, प्यूरीन तो है डबल रिंग कंपाउंड। डबल रिंग मीन्स इसमें टू रिंग्स हैं, दो रिंग हैं वो भी हम देखते हैं। और टू रिंग में जो फर्स्ट रिंग है ना, उसमें तो है कि 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है, हेक्सागन की फॉर्म में। और दूसरी जो है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, सेकेंड रिंग जो है ना, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेंटागन हैविंग 3 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन, ठीक है। ये भी हम देखते हैं कि एक रिंग तो हेक्सागन है और दूसरी कौन सी है, पेंटागन की फॉर्म में। ये आपस में ज्वाइनिंग है और प्यूरीन कंपोनेंट बताते हैं। पायरेमिडीन जो है ना, सिंगल रिंग कंपोनेंट, हेक्सागन की फॉर्म में ही है, सिंगल रिंग है और इसमें
सिंगल रिंग अगेन 2 नाइट्रोजनस ग्रुप है प्लस 4 कार्बन रिंग कंपाउंड है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्यूरीन से। तो प्यूरीन के जो दो कंपोनेंट हमने पढ़ने हैं ना, जो नाइट्रोजनस बेसिस, वन इज एडिनिन, वन इज एडिनिन and second is guanine, second is guanine, one is adenine and second is guanine, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ना इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका, एडेनिन का और गुआनिन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ स्टार्ट विद एडेनिन का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो हम एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दिस, दिस इज ए मेन हेक्सागन हमने बना लिया और उसके साथ ही एक रिंग और ज्वाइन कर दी पेंटागन की फॉर्म में, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दी। अब हमने इनकी नंबरिंग देखनी है कि किस तरह से करनी है इनकी नंबरिंग, क्योंकि इसमें जब भी हम नंबरिंग करेंगे ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज करनी है हमने। जैसे हमने यहाँ से यहाँ पे एक नाइट्रोजन ग्रुप रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन ग्रुप, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत जगह पूछे जा सकते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कि किस तरह के क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम यू। तो प्यूरीन को इधर हम एडेनिन बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडेनिन में व्हाट वी हैव टू सी, इफ वी टेक वन हेक्सागन, एक तो हमने हेक्सागन लिया और दूसरा हमने क्या लिया, पेंटागन के फॉर्म में लिया। ये तो हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है। मान लो जहाँ पे एक यहाँ नाइट्रोजन हम रखेंगे, एक नाइट्रोजन हमने फर्स्ट, इससे यहाँ से लेनी है हमने फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड पोजीशन एंड देन 4, 5 एंड देन 6, दिस इज अ 6 पोजीशन, ठीक है, एंड देन 7, 8 एंड 9 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से नंबरिंग करनी है ऐसे, ठीक है। जब भी हम प्यूरीन कंपोनेंट की नंबरिंग करेंगे, ये आप माइंड में रख लो, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे N1 2 और यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। और इसमें हमने 6 पोजीशन पे एक एमिनो ग्रुप बनाना है। एमिनो ग्रुप तो आपको मालूम ही है, NH2 ग्रुप। यहाँ एडेनिन लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं थोड़ा साइड पे लिख रही हूँ। यहाँ पे 6 पोजीशन पर एमिनो ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। एंड रेस्ट हमने इसके स्टेबलाइज कर देना है इसको इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर, और 7 पोजीशन पे भी हमने N और 9 पोजीशन पे भी N और उसके साथ H की ज्वाइनिंग करनी है। 9 पोजीशन पे तो ऑलवेज N एंड H की ज्वाइनिंग होगी। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है इसमें कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है प्यूरीन में या इनके बेसिक कंपोनेंट में, चाहे वो प्यूरीन का एडेनिन है चाहे गुआनिन है। तो जहाँ जहाँ पे ये प्रेजेंट होगी ना, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे है नाइट्रोजन प्रेजेंट, कहाँ कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, और फिर उसके बाद 7 एंड देन 9। ये वाला तो एमिनो ग्रुप, इसकी नाइट्रोजन नहीं काउंट करेंगे, ये तो फंक्शनल ग्रुप है और ये 6 पोजीशन पे है। और इसका अगर हम IUPAC नेम भी देखें ना, तो व्हाट IUPAC नेम वी विल बी गेटिंग, 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है तो 6 अमीनो, और इट इज़ ए प्यूरीन कंपोनेंट, देन इट इज़ 6 अमीनो प्यूरीन। इसका क्या नाम बन जाएगा, 6 अमीनो प्यूरीन। ये तो वैसे बायोमोलिक्यूल्स में भी रिपीट किया जाएगा, लेकिन फिर भी इट विल बी ए सॉर्ट ऑफ, एक तरह से आपको क्या कह लें कि रिवीजन ही हो जाएगी ना। तो ये एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है किस किस पोजीशन पे ये होती है नाइट्रोजन प्रेजेंट, और इसमें एडेनिन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है फंक्शनल, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी का ही बिल्कुल सिंपल, इसी के साथ अगर हम बनाए ना गुआनिन का, मैं यहाँ इसको रब कर दूँ, आई मेक ऑन दिस साइड, यहाँ गुआनिन का बना देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो सेम इज हेयर, गुआनिन में अगर हम देखें ना, सेम 2 रिंग्स दे आर ज्वाइन। अब इसमें देखो हमने देखे थे 2 नाइट्रोजन है, 1 2 और कार्बन बाकी रह गए 6 आर्म्स में, 1 2 3 एंड 4 पोजीशन पे कार्बन, 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ठीक है। अमीनो ग्रुप वाला NH2 फंक्शनल ग्रुप अलग से है, ठीक है।
इसी तरह से ये 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन फंक्शन हो गया ना। यहाँ पे हमने देखना है 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन है और 1 2 3 पोजीशन पे कार्बन है, तो 2n+3 कार्बन, ये कंडीशन भी क्लियर होगी और ये वाली भी हमने इसमें क्लियर कर ली। द सेम विल बी फॉर्मिंग इन गुआनिन आल्सो। गुआनिन में भी ऐसे ही हमने देख लिया करना है किस तरह से। अब हमने अगेन नंबरिंग वैसे ही स्टार्ट करनी है। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा लेना है हमने, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ग्रुप लगाना है, एन के साथ एच भी है, यहाँ पे भी एन और एच आएगा। एक जस्ट चेक कर लो, क्योंकि ये थोड़े से लर्न भी करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। नहीं, एन ओनली एन नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल पहले भी, ठीक है। और उसके बाद अब हम इसको देखते हैं अगेन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। यहाँ अमीनो ग्रुप था ना, अब हम ये अमीनो ग्रुप यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। उसके बजाय हमने क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन पे आ जाएगा व्हाट वी कैन से अमीनो ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे आ जाएगा, देयर विल बी ए ऑक्सी ग्रुप दैट वी आर फॉर्मिंग। 2 फंक्शनल ग्रुप है ना इसमें, 1 इज ऑक्सी एंड 1 इज अमीनो ग्रुप, एंड 1 हाइड्रोजन वी आर गेटिंग ऑन दिस साइड। हाइड्रोजन यहाँ भी होगी और एक्चुअल में इट विल बी प्रेजेंट ऑन दिस साइड ऑल्सो, NH यहाँ भी होगी, ठीक है। नहीं, ओनली इन दिस, सॉरी, ये ठीक था यहाँ पे, क्लियर। अब फिर से हम देखेंगे इसकी जो अंदर से हमने ज्वाइन कर लिया, यहाँ बॉन्डिंग और यहाँ बॉन्डिंग, अगेन ये हमें थोड़ा ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमें देखना है जहाँ पे भी अमीनो ग्रुप है वहाँ बॉन्डिंग है, जहाँ ऑक्सी ग्रुप है वहाँ हमने कोई बॉन्ड नहीं दिखाना, ये आप माइंड में रख लेना। और नहीं तो वैसे बीइंग ए केमिस्ट्री आपको पता ही होगा किस तरह से इनकी स्टेबलाइजेशन और बैलेंसिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे NH और ये 7 और 8, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, एंड 9 अगेन द सेम पोजिशन, 1 3 एंड 7 9 पोजिशन पे, 1 3 एंड 7 एंड 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन आ गई। अगेन नंबर ऑफ रिंग्स सेम हो गया इन दोनों में, बट हमने यहाँ पे देखा 6 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप लग गया और 2 पोजीशन पे अमीनो। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या देंगे, 2 अमीनो एंड 6 ऑक्सी प्यूरीन, 2 अमीनो एंड 6 ऑक्सी प्यूरीन। एक तो ये हमने देखना कि नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। दूसरा हमने ये जो 9 कार्बन शुगर है ना, इसको माइंड में रखना है। यहाँ से हमने बॉन्डिंग दिखानी है नाइट्रोजन बेस की, यहाँ से 9 कार्बन पोजीशन ऑफ प्यूरीन इज ज्वाइनिंग विद C1 कार्बन ऑफ शुगर। अभी हमने शुगर बनाई थी ना, रिबो शुगर का जो फर्स्ट कार्बन था, उसके साथ इसकी 9 कार्बन को जोड़ेंगे, ठीक है। जब हम DNA का पार्ट बनाएंगे, वो कैसे देखेंगे वो तो मैं आपको अभी समझाऊंगी। पहले मैं एक नाइट्रोजन कंपाउंड कंप्लीट कर लूँ, फिर हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड बनेगा। पहले जब नाइट्रोजन और शुगर ज्वाइन करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और न्यूक्लियोसाइड में मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जो प्यूरीन का जो 9 कार्बन पे नाइट्रोजन है, चाहे वो एडिनिन है चाहे वो गुआनिन है, ठीक है, इनकी 9 कार्बन रिबोज शुगर की फर्स्ट कार्बन के साथ ज्वाइन करेगी। लेकिन पायरामिडिन में क्या होगा, ओनली फर्स्ट कार्बन शुगर की और फर्स्ट कार्बन ही किसकी, पायरामिडिन के कंपाउंड की, क्योंकि इसमें सिंगल रिंग कंपाउंड है। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स है, इसमें तो एडेनिन और गुआनिन था, ठीक है। एडेनिन एंड गुआनिन, दे आर 2 मेन प्यूरीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट बोथ इन DNA एंड RNA, ठीक है। एडेनिन भी होता है, गुआनिन भी होता है। अब हम देखते हैं पायरामिडिन कंपोनेंट क्या होता है। पायरामिडिन में सच काइंड ऑफ रिंग दैट वी आर गेटिंग, इस तरह की ये तो एक ये रिंग मिलेगी देखने को। अब इसका मैं एक बार स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, फिर आपको उसके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस से फटाफट बताऊंगी विच कंपोनेंट इज देयर। तो बहुत सारा पार्ट हमारा केमिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा, जबकि इसकी इसमें ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि एक हर एस्पेक्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये वाला पायरामिडिन कंपोनेंट। पायरामिडिन में मैं जैसे कि बताया 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन रिंग है, आपको ऑटोमेटिकली पता लग ही गया होगा 2 पोजीशन पे। अब हम इसमें
देखेंगे कि उसमें तो एंटी क्लॉकवाइज ली थी ना हमने, अब हमने क्लॉकवाइज इसमें नंबरिंग करनी है। स्टार्टिंग यहाँ से लेनी है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये रिंग के पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द साइटोसिन। साइटोसिन में हमें 2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, एक तो सेकेंड पोजिशन पे ऑक्सी है, 4 पोजिशन पे अमीनो। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑक्सी 4 अमीनो। अब इट इज़ ए प्यूरिन है ना, तो 4 अमीनो प्यूरिन, ये तो हो गया इसका साइंटिफिक नेम। क्लियर? तो बट हमने ये सबका स्केलेटल स्ट्रक्चर तो सबका सेम है तीनों में, लेकिन हमने इसमें क्या देखना है, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि इसमें फंक्शनल ग्रुप सब में चेंज हो रहे हैं। दैट इज़ वाई दे आर हैविंग डिफरेंट नेम्स, सबके नेम्स क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट हमने साइटोसिन देख लिया। सेकेंड हमने देखना है यूरेसिल। यूरेसिल में हमने सेकंड पोजीशन पे भी, मुझे डाउट लग रहा था इसलिए मेरे को चेक करना था, एक ऑक्सी पोजीशन, 2 ऑक्सी 2 पोजीशन पे भी और 4 पोजीशन पे भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसमें नाइट्रोजन तो वही फर्स्ट एंड 3 पोजीशन पे है, इसमें भी नाइट्रोजन फर्स्ट एंड 3 पोजीशन पे, इसमें भी फर्स्ट एंड 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। उसमें फर्स्ट 3 7 एंड 9 था ना, अब इसमें फर्स्ट एंड 3 पोजीशन पे। और ये जो है ना नाइट्रोजन यहाँ वाला, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरी करता है, ये शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ ज्वाइन करेगा। तो ये फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजन का, ठीक है, इसका इस रिंग का फर्स्ट नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन वाला, और शुगर के भी फर्स्ट पे। और प्यूरिन में हमने क्या देखा था, व्हाट वी हैव सीन इन प्यूरिन, 9 पोजीशन पे था, 9 पोजीशन पे जो रिंग था नाइट्रोजन था, वो कार्बन की फर्स्ट से ज्वाइन करेगा। फिर से जब बनाएंगे देन वी अगेन चेक, फिर से चेक करेंगे। अभी तो इसका नाम हमने देख लिया 2 ऑक्सी 4 अमीनो, अब इसका 2 and 4 डाई ऑक्सी, अब इसमें अमीनो ग्रुप नहीं है, 2 4 डाई ऑक्सी प्यूरिन नाम है इसका, 2 ग्रुप है। अब इसमें 2 4 डाई ऑक्सी 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है, 2 4 डाई ऑक्सी एंड 5 पोजीशन पे मिथाइल, 5 मिथाइल प्यूरिन। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पायरामिडीन। पायरामिडीन में साइटोसिन, ठीक है, सेकेंड वन इज यूरेसिल एंड दिस इज दैट वी आर कॉलिंग इट थायमिन। 3 हमने पायरामिडीन जो कि देखे, और लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हमने याद रखनी है। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, यूरेसिल जो है ना, जो बीच वाला कंपोनेंट है वो आरएनए में प्रेजेंट है बट एब्सेंट इन डीएनए, आरएनए में प्रेजेंट डीएनए में एब्सेंट, ये माइंड में रखना है हमने। ठीक है, दिस प्यूरिन कंपोनेंट यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एब्सेंट इन डीएनए। और थायमिन किस में प्रेजेंट होगा, इज प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए, ये भी हमने याद रखना। थायमिन जो है जो सबसे लास्ट में बनाया, जिसमें मिथाइल ग्रुप भी है फंक्शनल, 2 4, यहाँ पे तो 2 4 पोजीशन पे ऑक्सी लगा दो, बहुत इजी है, और वहाँ 5 पोजीशन में मिथाइल लगा दो थायमिन, और यहाँ पे हमने एक पे ऑक्सी एक पे अमीनो ग्रुप। वैसे तो इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, बहुत इजीली हमारा ये लर्न हो सकता है। ठीक है, बारी बारी अगर हम रिपीट करेंगे तो थायमिन, लेकिन हमने एक्चुअल में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, हमने एक तो फंक्शनल ग्रुप देख लेने हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, दूसरा मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे आते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे कौन सी कार्बन, प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन ग्रुप ज्वाइन कर रहा है शुगर के साथ, ये सब चीज़ें हमने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो मैं किससे बात कर रही थी, आई वाज टॉकिंग अबाउट दी थायमिन। डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में एब्सेंट होता है, और यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में एब्सेंट होता है। ठीक है, ये हमने याद माइंड में रखना है। कैसे ज्वाइन करेंगे ये तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम बेस सारा देख रहे हैं, रॉ मटेरियल व्हाट इज प्रेजेंट और किस फॉर्म में प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ क्या मिल सकता है। और साइटोसिन जो है ना, इट इज़ कॉमन टू बोथ, डीएनए में भी है और आरएनए भी है, में भी है, कॉमन टू बोथ। तो ये भी पूछ सकते हैं कौन सा कंपोनेंट जो है कॉमन है डीएनए और आरएनए में, कौन सा प्यूरिन कंपोनेंट। तो एकदम से अगर हमने पढ़ा हुआ है, वैसे तो सोचने में पता लग ही जाता है अगर हमें अच्छे से मालूम है, लेकिन इफ़ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस सो मैनी टाइम्स, मैंने आपको बता दिया तो एकदम से हमारे माइंड में आ जाएगा साइटोसिन इज कॉमन टू बोथ, विच इज़ एब्सेंट इन आरएनए यूरेसिल। ठीक है, प्यूरिन कौन सा एब्सेंट है, आरएनए। डीएनए में कौन सा एब्सेंट है, दैट इज़ यूरेसिल।
आरएनए में कौन सा प्रेजेंट है, यूरेसिल प्रेजेंट। डी आरएनए में कौन सा एब्सेंट है, थायमिन, ठीक है। डीएनए में कौन सा प्रेजेंट है, थायमिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने माइंड में रखनी है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और फिर न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड क्या बनता है, जो कि एक मोनोमेरिक यूनिट है डीएनए की, ठीक है।